جی حضرت جگر پہ پروگرام جاری رکھتے ہیں۔ حضرت جگر کی باتوں کا انداز بھی بہت نرالا تھا۔ وہ غزل کی طرح نجی گفتگو میں بھی اشاروں سے کام لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مطلب ادا ہو گیا، حالانکہ دوسرے آدمی کو ان کی بات سمجھنے میں دماغ پر زور دینا پڑتا تھا۔ جگر صاحب زیادہ تر خوش رہتے تھے، ہنسنے ہنسانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور بہت سے لوگ صرف ان کی باتیں ہی سننے آیا کرتے تھے۔ حضرت جگر کے شعری مجموعوں میں شامل ہیں داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل، یادگار جگر اور کلیات جگر۔ اب ہم ان کا کلام سنتے ہیں جناب تصدق قطاری صاحب سے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان میں کہ وہاں پیو تو حلال ہے اور یہاں پیو تو حرام ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اجازت؟ آداب عرض ہے۔ ایک غزل کے کچھ اشعار۔ رکھتے ہیں خضر سے نہ غرض رہنما سے ہم، رکھتے ہیں خضر سے نہ غرض رہنما سے ہم، چلتے ہیں بچ کے دور ہر ایک نقش پا سے ہم، مانوس ہو چلے ہیں جو دل کی صدا سے ہم، مانوس ہو چلے ہیں جو دل کی صدا سے ہم، شاید کہ جی اٹھے تیری آواز پا سے ہم۔ یا رب نگاہ شوق کو دیں، یا رب نگاہ شوق کو دے اور وسعتیں، یا رب نگاہ شوق کو دے اور وسعتیں، گھبرا اٹھے جمال جہت آشنا سے ہم، مخصوص کس کے واسطے ہے رحمت تمام، مخصوص کس کے واسطے ہے رحمت تمام، پوچھیں گے ایک دن یہ کسی پارسا سے ہم، او مست ناز حسن، او مست ناز حسن تجھے کچھ خبر بھی ہے، او مست ناز حسن تجھے کچھ خبر بھی ہے، تجھ پر نثار ہوتے ہیں کس کس ادا سے ہم، یہ کون چھا گیا ہے، یہ کون چھا گیا ہے دل و دیدہ پر کہ آج، یہ کون چھا گیا ہے دل و دیدہ پر کہ آج، اپنی نظر میں آپ ہیں نہ آشنا سے ہم، رکھتے خضر سے نہ غرض رہنما سے ہم۔ شکریہ۔ بہت شکریہ تصدق قطاری صاحب۔ حضرت جگر کو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنے عروج کے زمانے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی انہیں بلانا چاہے پہلے جامعہ کو 50 روپے بطور چندہ دے، اور ان کے قدردانوں نے ایسا ہی کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے بھی اس عظیم شاعر کی قدردانی میں کسر نہ اٹھا رکھی۔ جامعہ کی لائبریری میں گوشہ جگر قائم کر دیا گیا۔ یہاں جگر سے متعلق بہت مفید مواد اکٹھا کیا گیا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے بھی جگر مراد آبادی کو بہت نوازا اور حضرت جگر نے بھی وقف نامہ میں اپنی آمدنی کا آدھا حصہ علی گڑھ یونیورسٹی کے نادار طلباء کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی ایک غزل میں سے چند اشعار ہیں۔ تکلف سے تصنع سے بری ہے شاعری اپنی، تکلف سے تصنع سے بری ہے شاعری اپنی، حقیقت شعر میں جو ہے وہی ہے زندگی اپنی، ہمیں کیوں اب کوئی سمجھائے دل اپنا خوشی اپنی، غریباں اپنا ہاتھ اپنے جنوں اپنا ہنسی اپنی، اور اسے سمجھے نہ سمجھے کوئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ ترک میں کشی پر بھی وہی ہے میں کشی اپنی، اور جگر رہ جائے بن کر آہ جو ایک کاسہ سائل،
जिगर रह जाए बनकर आह जो एक कासा साइल, न ऐसी शायरी अपनी न ऐसी जिंदगी अपनी। हजरत जिगर का कलाम सुनते हैं जनाब मिराज गजाली साहिबा से। मोहतरमा मिराज गजाली। ना अब मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है। ना अब मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है। सताते नहीं वो तो उनकी तरफ से, सताते नहीं वो तो उनकी तरफ से, खुद अपने सताने को जी चाहता है, खुद अपने सताने को जी चाहता है। कोई मसलहत रोक देती है वरना पलटते ज़माने को जी चाहता है। तुझे भूल जाना तो है गैर मुमकिन, तुझे भूल जाना तो है गैर मुमकिन, मगर भूल जाने को जी चाहता है। तवाज़ा कर है इश्क चंद आंसुओं से, बहुत मुस्कुराने को जी चाहता है। बहुत देर तक छुप के तेरी नज़र से तुझे देख पाने को जी चाहता है। तेरी आँख को भी जो बेख्वाब कर दे वो फितना जगाने को जी चाहता है। हंसी तेरी आँखें हंसी तेरे आंसू, यही डूब जाने को जी चाहता है। जिगर अब तो वो भी ये कहते हैं मुझसे, जिगर अब तो वो भी ये कहते हैं मुझसे, तेरे नाज उठाने को जी चाहता है, तेरे नाज उठाने को जी चाहता है। ना मुस्कराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है। शुक्रिया। सताते नहीं वो तो उनकी तरफ से, खुद अपने सताने को जी चाहता है। शुक्रिया बहुत शुक्रिया मिराज गजाली साहिबा। और गजाली साहब आपके लिए लम्हा फिक्रिया है ये। सही। चलिए वापस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। गो जिगर मुरादाबादी ने खुद हजरत दाग देहलवी, रसा रामपुरी, मुंशी अमीर और तस्लीम लखनवी से इस्लाह ली, मगर दिलचस्प बात यह है कि वो शायरी में उस्तादी शागिर्दी के ज़्यादा कायल नहीं थे। उनका कहना था कि अच्छा शेर उस्ताद नहीं ज़ौक़े शेर कहलवाता है, और ज़ौक़े शेर इक्तिसाबी चीज़ नहीं है, ये खुदा की देन है। सिर्फ रास मुरादाबादी को ही जिगर साहब के शागिर्द होने का फ़ख्र हासिल है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जिगर के अहद में उस्ताद शायर अपने शागिर्दों की फ़ौज को लेकर मुशायरे में शिरकत किया करते थे, जिसके जितने शागिर्द उतना ही बड़ा वो शायर। जिगर साहब ने कभी इस रिवायत को नहीं माना, उन्होंने शागिर्द ही नहीं बनाए जो लेकर जाते। उनकी एक गज़ल में से चंद अशआर। यूं तो होने को गुलिस्तां भी है वीराना भी है, यूं तो होने को गुलिस्तां भी है वीराना भी है, देखना ये है कि हम में कोई दीवाना भी है। यूं तो होने को गुलिस्तां भी है वीराना भी है, देखना ये है कि हम में कोई दीवाना भी है। और खैर जाहिद ये कैसा इनकलाब आया कि आज, खैर जाहिद ये कैसा इनकलाब आया कि आज, तेरे हर अंदाज में एक कैफ़े रिंदाना भी है। और किस जगह वाक़े हुआ है हज़रत वाइस का घर,
किस जगह वाक़े हुआ है हज़रत वाइस का घर, दूर मस्जिद भी नहीं, नज़दीक मैखाना भी है। अभी ब्रेक में पता चला कि आज हमारी महफिल में बहुत सारे लोग मुरादाबाद से भी हैं। मैं बुलाता हूँ। तो उनमें से 2 हज़रात यहाँ आएंगे, कुछ मुरादाबाद की बातें करेंगे, कुछ हज़रत जिगर के अशआर भी सुनाएंगे। तो इसलिए मैं पहले दावत देता हूँ जनाब साबर चिश्ती मुरादाबादी को। ख़वातीन व हज़रात, आदाब व सलाम। मैं एकेडमी का शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐन वक्त और मुझको शामिल कर लिया, लेकिन अगर इनको ये पता चल जाता कि मुरादाबाद में शोरा के 2 ग्रुप हैं, कैफ व कमर। कमर ग्रुप जिगर मुरादाबादी से ताल्लुक़ रखता है और हम कैफ मुरादाबादी से। इनको पता हो जाता तो हमें यहाँ आने का वहाँ भी नहीं आने देते दरवाजे तक। तो हमारे उस्ताद कैफ मुरादाबादी उतने ही पाए के शायर गुज़रे हैं जितने के जिगर मुरादाबादी गुज़रे हैं। लेकिन क्योंकि जिगर मुरादाबादी का पता बाद में चला लोगों को, अब जान गए। मैं ख़ुद नहीं जानता था, मैं समझता था मुरादाबाद सिर्फ ज़रूफ़ साजी और बर्तन फरोशी के लिए और तंबाकू के लिए मशहूर है, लेकिन नहीं, जिगर साहब ने उनका नाम शुअरा में और अदीबों की लिस्ट में मुरादाबाद का नाम शामिल कर दिया। 20 साल पैदा होने के बाद 20 साल मुरादाबाद में गुजारे और उसके बाद 45 साल यहाँ बर्बाद किए। और क्योंकि मुरादाबाद में हम मुफ्ती टोले में रहते हैं और जिगर साहब लाल बाग में, बहुत ही करीब, यानी सिर्फ चंद ब्लॉक का फासला है। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझको चंद शेर पढ़ने का मौका दिया गया। आपकी इजाज़त से अर्ज़ कर दूँ। ये है मैं कदा यहाँ रिंद हैं, यहाँ सब का साक़ी इमाम है। ये है मैं कदा यहाँ रिंद हैं, यहाँ सब का साक़ी इमाम है। ये हरम नहीं है ऐ शेख जी, यहाँ पार साई हराम है। ये हरम नहीं, ये हरम नहीं है ऐ शेख जी, यहाँ पार साई हराम है। शेर कर रहा हूँ। कोई मस्त है, कोई तिश्ना लब, तो किसी के हाथ में जाम है। कोई मस्त है, कोई तिश्ना लब, तो किसी के हाथ में जाम है। मगर इसका कोई करेगा क्या, मगर इसका कोई करेगा क्या। ये जो मैं कदे का निज़ाम है, मगर इसका कोई मस्त है, कोई तिश्ना लब, तो किसी के हाथ में जाम है। मगर इसका कोई करेगा क्या, ये जो मैं कदे का निज़ाम है। ये शेर पढ़ रहा हूँ मैं। अभी जब भाई ने ये शेर पढ़ा तो मैं समझा कि शायद मेरा नंबर कट जाएगा, क्योंकि इसी गज़ल का शेर अभी उन्होंने पढ़ा था। ये शेर, ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा
ہے عجیب سارے جہان میں یہ جناب شیخ کا فلسفہ، ہے عجیب سارے جہان میں جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان میں، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، کہ بلند ہو کہ بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے، کہ بلند ہو کہ بھی آدمی ابھی خواہش۔ بہت بہت صابر چشتی صاحب۔ اور اب جب کہ پتہ چل گیا کہ آپ دوسرے گروپ سے ہیں تو اب یہ ضرور میں کہوں گا کہ بہت خوش نصیب شاعر ایسے ہوں گے جنہیں جگر جیسی مقبولیت نصیب ہوئی۔ عوام اور خاص دونوں میں وہ یکساں مقبول تھے۔ جگر پہلے اردو شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا اعزاز ملا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ان کی شاعرانہ عظمت کے اعتراف کے طور پر انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ جگر کو اپنے آخری مجموعہ کلام آتش گل پر ساہتیہ اکیڈمی کا 5000 کا انعام بھی ملا۔ حکومت کی طرف سے تاحیات پینشن مقرر تھی جو بعد میں ان کی بیوہ کو منتقل کر دی گئی۔ ہر دل عزیزی ایسی کہ جہاں رک جاتے تھے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ علی سردار جعفری نے ٹھیک ہی لکھا تھا کہ وہ آج کل کے مشہور فلم ایکٹرز کی طرح تھے، جہاں جاتے اپنے ساتھ جمع غفیر لے جاتے، اور یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ ان کی ایک غزل میں سے 2-3 اشعار۔ نقاب حسن دو عالم اٹھائی جاتی ہے، نقاب حسن دو عالم اٹھائی جاتی ہے، مجھی کو میری تجلی دکھائی جاتی ہے، اور قدم قدم پہ میری ہمت بڑھائی جاتی ہے، نفس نفس تیری آہٹ سی پائی جاتی ہے، اور خدا وہ درد محبت ہر ایک کو بخشے کہ جس میں روح کی تسکین پائی جاتی ہے۔ اب جگر صاحب کا کلام سنائیں گے جناب عبدالستار غزالی صاحب۔ جناب میں اصل میں دوہری اجازت چاہوں گا، پچھلی دفعہ بھول گیا اجازت لینا، تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب اجازت۔ جناب یہ ایک جگر مراد آبادی صاحب کی ایک بڑی مقبول ایک غزل ہے، جس کے اوپر جو ہے ہمارا ایک پرابلم بھی ہو گیا کہ میں نے یہ چوز کی تو ہمارے تصدق بھائی نے بھی یہی چوز کر لی تھی۔ کہاں گئے تصدق بھائی؟ چلے گئے؟ اوہ اچھا، تو یہ میں پھر آپ ہی کی نظر کروں گا اور کیا۔ جناب یہ کہتے ہیں بے کیف دل ہے اور جیے جا رہا ہوں میں، بے کیف دل ہے اور جیے جا رہا ہوں میں، خالی ہے شیشہ اور پیے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں پیے جا رہا ہوں تو سب کی زبان پہ آگے کیا بات ہے؟ خالی ہے شیشہ اور پیے جا رہا ہوں میں، پہم جو آہ آہ کیے جا رہا ہوں میں، پہم جو آہ آہ کیے جا رہا ہوں میں، دولت ہے غم زکوٰۃ دیے جا رہا ہوں میں، دولت ہے غم زکوٰۃ دیے جا رہا ہوں میں، مجبور یہ کمال محبت تو دیکھنا، مجبور یہ کمال محبت تو دیکھنا، جینا نہیں قبول
मगर जिए जा रहा हूँ। जीना नहीं कबूल जिए जा रहा हूँ मैं। वो दिल कहाँ है अब के जिसे प्यार कीजिए, वो दिल कहाँ है अब के जिसे प्यार कीजिए। मजबूरियाँ हैं साथ दिए जा रहा हूँ मैं। ये नहीं दोहराऊंगा मैं। रुखसत हुई शबाब के हमराह जिंदगी, रुखसत हुई शबाब के हमराह जिंदगी। कहने की बात है कि जिए जा रहा हूँ मैं। और पहले शराब जीस थी जी, ये तो सबको ही याद है। तो पहले शराब जीस थी, अब जीस्त है शराब। कोई पिला रहा है पिए जा रहा हूँ मैं। और बेकैफ दिल है और जिए जा रहा हूँ मैं। खाली है शीशा और पिए जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गजाली साहब। हज़रत जिगर फितरतन नेक और सच्चे आदमी थे। बहुत सादा दिल और सादा मिजाज थे। जब उन्होंने शायरी का आगाज़ किया तब भी, और जब अपनी शोहरत के बाम अरूज पर पहुँचे उस वक्त भी गरूर नाम को नहीं आने दिया। अपनी शोहरत के ज़माने में उन्होंने मामूली लोगों की फरमाइश पर गज़लें सुनाई, लेकिन किसी रईस के सामने जब तक कि वो अदब नवाज ना हो अपना कलाम नहीं पढ़ा। मरवत के पैकर थे, ज़्यादातर संजीदा रहते और लग़्व बातों से परहेज़ करते थे। हस्बे मरातब का बहुत ख्याल रहता था, गुस्सा कम ही आता था। अगर कभी किसी को मामूली सी सख्त बात भी कह देते तो समझते थे कि कोई बड़ी दिलशिकनी हो गई। कैसर बाग लखनऊ की बारादरी में एक मुशायरा था जिसमें यूपी के अंग्रेज़ गवर्नर ने भी शिरकत की। जब जिगर साहब की बारी आई तो लोगों को ये तवक्को थी कि वो कोई आशिकाना, रिंदाना, वालिहाना गज़ल सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने एक नज़र गवर्नर पर डाली, एक मजमा पर, फिर सर के बालों पर हाथ फेरा और इंतहाई दिलदोज़ तरन्नुम में अपनी नज़्म कहते बंगाल शुरू कर दी। उस नज़्म में से चंद अशार कहते बंगाल। बंगाल की मैं शाम व सहर देख रहा हूँ, हर चंद के हूँ दूर मगर देख रहा हूँ। अफलास की मारी हुई मखलूक सरे राह, बेगोर व कफन खाक बसर देख रहा हूँ। बच्चों का तड़पना, वो बिलकना, वो सिसकना, माँ बाप की मायूस नज़र देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ। और तामीर के पर्दे में ये अंदाज़ हुकूमत, तखरीब बउनवान दिगर देख रहा हूँ। अंजाम सितम अब कोई देखे कि न देखे, मैं साफ इन आँखों से मगर देख रहा हूँ। और अरबाब वतन को मेरी जानब से हो मुजदा, अग़ियार को मजबूर सफ़र देख रहा हूँ। और रहमत का चमकने को है फिर नैयर ताबा, होने को है इस शब की सहर देख रहा हूँ। और जो ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर था अब तक, उस ख्वाब की ताबीर जिगर देख रहा हूँ। ये आज़ादी का तराना था। गवर्नर साहब पेचोताप खाते हुए मुशायरे से उठ गए और जिगर अंदाज़े बेनियाजी से मुस्कुराते रहे। अब हज़रत जिगर का कलाम सुनाएंगे जनाब हातिम रानी साहब। क्या क़यामत है कि इस दौर तरक्की में जिगर, क्या क़यामत है कि इस दौर तरक्की में जिगर, आदमी से आदमी का हक अदा होता नहीं, आदमी से आदमी का हक अदा होता नहीं। तरन्नुम से पढ़ सकता हूँ। दुनिया के सितम याद ना
اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ، اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی، محبت کے سوا یاد، دنیا کے ستم یاد۔ میں شکوہ بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد، شاید کہ میرے بھولنے، شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد، دنیا کے ستم یاد۔ کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، مرنے کی ادا یاد نہ، جینے کی ادا یاد، مرنے کی ادا یاد۔ مدت ہوئی ایک حادثہ عشق کو لیکن، مدت ہوئی ایک حادثہ عشق کو لیکن، اب تک ہے تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا یاد، اب تک ہے تیرے دل۔ ہاں ہاں تجھے کیا کام میری شدت غم سے، ہاں ہاں تجھے کیا کام میری شدت غم سے، ہاں ہاں نہیں مجھ کو تیرے دامن کی ہوا یاد، میں ترک رہو رسم و جنوں کر ہی چکا تھا، میں ترک رہو رسم و جنوں کر ہی چکا تھا، کیوں آ گئی ایسے میں تیری لغزش پایات، کیوں آ گئی؟ کیا لطف کہ میں اپنا پتہ آپ بتاؤں، کیا لطف کہ میں اپنا پتہ آپ بتاؤں، کیجے کوئی بھولی ہوئی، کیجے کوئی بھولی ہوئی خاص اپنی ادایا، کیجے کوئی بھولی ہوئی خاص اپنی ادایا، دنیا کے ستم یا شکریہ۔ شکریہ صاحب۔ نیکی اور سچائی کے ساتھ ساتھ حضرت جگر کے مزاج میں عجلت اور گھبراہٹ بھی تھی، جس میں تھوڑی سی بدحواسی بھی شامل تھی۔ اکثر سواری پر کہیں جاتے تو راستے میں سوال کرتے جاتے کہ ابھی جگہ آئی یا نہیں، آر وی دیر یٹ۔ بعض اوقات بہکے رہتے تھے، ترک مینوشی کے بعد بھی نشہ ستاری رہتا۔
कोई चीज़ उनके पास 1 महीना से ज़्यादा रहना मुश्किल थी। पान की डिबिया, छड़ी, घड़ी, बटवा और दीगर कीमती अशिया अक्सर गायब हो जाती थी और लोग उनकी इस बदहवासी से बहुत फ़ायदा उठाते थे। उनकी एक गज़ल में से 2-3 अशार। दर्द बढ़कर फुगा ना हो जाए, दर्द बढ़कर फुगा ना हो जाए, ये ज़मीं आसमां ना हो जाए, और आसमां को न देखिए तनकर, आसमां को न देखिए तनकर, फिर ये बूढ़ा जवान ना हो जाए। इश्क अपनी खुशी से कौन करे, इश्क अपनी खुशी से कौन करे, इश्क अगर नागहां ना हो जाए। और मक्ता सुनिए, बहुत ही शौक सा मक्ता। ताकुजा इंतज़ार खुल्द जिगर, ताकुजा इंतज़ार खुल्द जिगर, हूर एक दिन यहाँ ना हो जाए। ताकुजा इंतज़ार खुल्द जिगर, हूर एक दिन यहाँ ना हो जाए। और अब हम उनका कलाम सुनते हैं जनाब शहजाद बसीर साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अच्छा सब इजाज़त है। तो जगर मुरादाबादी साहब की एक और गज़ल है। उम्र भर रूह की और जिस्म की यकजाई हो, उम्र भर रूह की और जिस्म की यकजाई हो, क्या क़यामत है कि फिर भी ना शनासाई हो। उम्र भर रूह की और जिस्म की यकजाई हो, क्या क़यामत है कि फिर भी ना शनासाई हो। कोई इतना भी ना मसरूफ़ खुद आराई हो, कोई इतना भी ना मसरूफ़ खुद आराई हो कि तमाशा रहे बाकी ना तमाशाई हो। अंजुमन हो ना सरे अंजुमन आराई हो, अंजुमन हो ना सरे अंजुमन आराई हो, मैं हूँ और सिर्फ मेरा आलमे तन्हाई हो। मस्ती हुस्न गमे इश्क पे यूं छाई हो, मस्ती हुस्न गमे इश्क पे यूं छाई हो, दिल से जो मौजे गम उठे तेरी अंगड़ाई हो। ए गमे दोस्त तेरा सब्र मुझी पर टूटे, ए गमे दोस्त तेरा सब्र मुझी पर टूटे, बे तेरे नींद भी आंखों में अगर आई हो। वो मोहब्बत ही नहीं है वो क़यामत ही नहीं, वो मोहब्बत ही नहीं है वो क़यामत ही नहीं, जो तेरे पाए नगारी की ना ठुकराई हो गई दिल को तेरी याद से एक निस्बत ख़ास, हो गई दिल को तेरी याद से एक निस्बत ख़ास, अब तो शायद ही मुयस्सर कभी तन्हाई हो। उम्र भर रूह की और जिस्म की यकजाई हो, क्या क़यामत है कि फिर भी ना शनासाई हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहजाद बसीर साहब। हज़रत जिगर जब पीते भी थे तब भी उन्होंने शराब को हमेशा बुरा समझा, इसको एक बुरी लत जाना। उनके मिलने वालों में ऐसे भी लोग मौजूद थे जो इसके गवाह थे कि नए आदमी को जिगर शराब नहीं पीने देते थे और अक्सर शेर व शायरी करने को भी मना करते थे। जनाब वसीम बरेलवी को जब बचपन में शायरी का शौक़ हुआ तो वो अपना कलाम बगर्ज़ इस्लाह हज़रत जिगर के पास लेकर पहुँचे तो जिगर ने कहा, अभी तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं, पढ़ाई में दिल लगाओ, शायरी बात को भी हो सकती है। जिगर साहब की तर्क मैनोशी मिसाली थी, वो चलते फिरते इम्तनाए मैनोशी के इश्तिहार थे। ऐसा लगता है कि तर्क मैनोशी का कई बार इरादा किया होगा और एक आध बार तौबा टूट भी गई होगी, इसीलिए तो उन्होंने शिकस्त तौबा जैसी मारकतुल आरा नज़्म कही। ये नज़्म सुनते हैं हम जनाब अरविंद कुमार साहब से। तो जैसा आपको मालूम हुआ है कि नज़्म का उन्वान है शिकस्त तौबा। साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। बेकैफियों के कैफ से घबरा के पी गया, बेकैफियों के कैफ से घबरा के पी गया, तौबा को तोड़ ताड़ के थर्रा के पी गया। जाहिद ये तेरी शोखिए रिंदाना देखना,
जाहिद ये तेरी शोखी रिंदाना देखना, रहमत को बातों बातों में बहला के पी गया। सरमस्ती अज़ल मुझे जब याद आ गई, सरमस्ती अज़ल मुझे जब याद आ गई, दुनियाए एतबार को ठुकरा के पी गया। आजुर्दगी खातिरे साकी को देखकर, आजुर्दगी खातिरे साकी को देखकर मुझको ये शर्म आई कि शर्मा के पी गया। ए रहमते तमाम मेरी हर खता मुआफ, ए रहमते तमाम मेरी हर खता मुआफ, मैं इंतहाए शौक में घबरा के पी गया। पीता बगैर इज़्न, पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्मे यार की शह पा के पी गया। उस जाने मैं कदा की कसम बारहा जिगर, उस जाने मैं कदा की कसम बारहा जिगर, कुल आलमे बसीत पे मैं छा के पी गया। साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। तो हमने देखा कि किस तरह मैं लहरा के पी गया, थर्रा के पी गया, रहमत को बातों बातों में बहला के पी गया, दुनिया एतबार को ठुकरा के पी गया, मैं इंतहाई शौक में घबरा के पी गया, दरपर्दा चश्मे यार की शह पा के पी गया, कुल आलम बसीत पे मैं छा के पी गया। तो इस नज़्म का मॉरल ये है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार साहब। जनाब मालिक राम अपने एक मज़मून में लिखते हैं, अगर पेट पालने की मजबूरी ना होती तो जिगर कभी कोई काम न करते। उनकी हस्ती का खमीर जिन अज्जा से उठाया गया था उनमें काहली और सुस्ती कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में पड़ गई थी। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है वो वाकई रूहुल कुद्स के शागिर्द थे, लेकिन जहाँ दुनिया का कोई मामला आया वो बिल्कुल कोरे थे। वो हफ्तों और महीनों कभी तिनका उठाकर नहीं तोड़ते थे। 1932 में जिगर साहब भोपाल में अपने दोस्त महमूद अली साहब से मिलने गए और बरसात के 6 महीने उनके यहाँ ठहरे। शहर के अक्सर साहिब ज़ौक़ हजरात रोज़ाना शाम को महमूद अली साहब के मकान पर जमा होते और जिगर साहब की सोबत का लुत्फ़ उठाते। अदबी गप और लतीफ़ाबाजी होती, शेर व शायरी का दौर भी चलता। ये इज्तिमा रात के 9 बजे से सुबह के 2-3 बजे तक चलता। रोज़ाना 5-6 घंटे तक तमाम आदाब व तकल्लुफ़ात के साथ एक जगह बैठना आसान नहीं था। इसलिए किसी बेफिक्र को सूझी कि ऐसी अंजुमन बनाई जाए जिसमें ये अदब व आदाब के सब क़यूद उठा दिए जाएं। सब ने इस तजवीज़ पर साद किया। इस अंजुमन का नाम अंजुमन अल-कुहला रखा गया, यानी काहिलों की अंजुमन। तो इस अंजुमन का जिक्र आगे चलता रहेगा। फ़िलहाल उनकी गज़ल में से कुछ अशआर। उस चश्मे मस्त ने मुझे मखमूर कर दिया, उस चश्मे मस्त ने मुझे मखमूर कर दिया, मैंने नज़र मिला के उसे चूर कर दिया। ये इश्क वो बला है कि हुस्ने अज़ल को भी, ये इश्क वो बला है कि हुस्ने अज़ल को भी तख्लीक़ कायनात पे मजबूर कर दिया। और तौबा तो कर चुका था मगर इसका क्या इलाज, तौबा तो कर चुका था मगर इसका क्या इलाज, वाइज़ की ज़िद ने फिर मुझे मजबूर कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेक में बहुत सारे मुरादाबाद के लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्हीं में से एक और साहब को दावत देता हूँ, जनाब तहव्वुर सिद्दीकी मुरादाबादी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सदर साहब, ताहिर साहब, आपका मैं मशकूर, ममनून और अपने तई खुश नसीबी महसूस करता हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया। दरअसल जिगर साहिबी का एक शेर पेश करता हूँ कि चलो चल के देखें जिगर का तमाशा, सुना है वो काफिर मुसलमान होगा। मैं भी पोर्टलैंड में अपने बच्चे के पास आया हुआ था, वो यहाँ इंजीनियर है और मेरी बेगम भी बैठी हुई हैं।
तो हम लोग वहाँ थे, तो नासिर भाई से मालूम हुआ कि यहाँ संडे को आपने महफिल सजाई है और जिगर साहब का जश्न है और अक़ीदत के सिलसिले में ये प्रोग्राम आपने मुरत्तिब किया। मैंने अपने तय ये खुशनसीबी महसूस की, मैं यहाँ हाज़िर हुआ और मेरे लिए तो सब काम बाद में और ये महफिल को अटेंड करना पहले। मैं शहर जिगर से हाज़िर हुआ हूँ। मैं तीसरे मकतब अदना खादिम उर्दू के सीखने के एक मदरसे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं माशियात का लेक्चरर हूँ और मेरा कॉलेज है मुस्लिम कॉलेज, जहाँ जिगर के अशार गूंजते रहते हैं। तो ये मैं आपके इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ और आपकी इस खराज अक़ीदत जो आपने पेश किया है हमारे जिगर के लिए, मैं अपना जिगर कहता हूँ उसको, क्योंकि हैं और आप यहाँ इतना अजीम कारनामा कर रहे हैं। मैं वाकई ताहिर साहब का और आप जैसे मुखलिस लोगों का, और मैं उनका नाम भूला, जिन्होंने बिल्कुल जिगर के तगज़्ज़ुल के अंदाज में गज़ल सुनाई उनकी। और ज़ाहिर है वो शहंशाह जिगर, शहंशाह गज़ल, तगज़्ज़ुल उनका एक अंदाज़ था जिस पर मनबिड़े हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जाकिर साहब, जैसे आपको ये फरमाया आपने ताहिर साहब ने कि वो उनके मुद्दा थे। तो सब काम तो यहाँ हो चुका पूरा कि बस एक शेर उनका मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिगर साहब का कि वो मोहब्बत के थे, मोहब्बत थी उनमें रवां, और वो मोहब्बत की बात करते थे और कहते थे कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये उनका शेर है। और बड़े अच्छे अच्छे शेर तो उनके सब हो चुके। एक और शेर उनका सब शेर हो चुके हैं तो दोबारा उनको कहने को दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं अपने शहर की जानिब से, शहर मुरादाबाद की जानिब से, इंडिया के अपने सब उर्दू दां हज़रात की जानिब से आपका फिर आपको एक बार मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप ऐसी महफिल सजाते हैं और सजाते रहिए। और ये आपका इसका जिक्र और इसका तस्करा मैं वहाँ मखसूस अंदाज में वहाँ के लोगों से करूँगा। और फिर एक बार आप सभी साहिबान का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तहव्वुर सिद्दीकी साहब। जी, उसी अंजुमन का, अंजुमन अल-कोहला का जिक्र, काहिलों की अंजुमन। इस अंजुमन का बुनियादी असूल ये तय पाया, यानी मिशन स्टेटमेंट, कि आजकल दुनिया में जितनी बेचैनी पाई जाती है उसकी वजह सूरत रफ्तार है। इसलिए बनी नौ इंसान को हलाकत से बचाने का वाहिद ज़रिया ये है कि इसे काहली जैसी नेमत इलाही की तरफ वापस लाया जाए। महमूद अली साहब के घर का वो कमरा जहाँ जिगर मुकीम थे इस अंजुमन का दफ्तर करार पाया और इसे दारुल कोहला कहा गया। अंजुमन के 4 ओहदेदार थे। हज़रत जिगर सदर थे, वो सदरुल कोहला कहलाए। हसरत लखनवी नायबुल कोहला। महमूद अली साहब जिनके ज़िम्मे इस अंजुमन के तमाम अजलास के लिए इंतज़ामात करना थे, वो नाज़मुल कोहला कहलाए। एक साहब जिनकी आवाज़ खासी बुलंद थी और उनके ज़िम्मे ये काम था कि वो सदरुल कोहला के अहकामात को ऊंची आवाज़ में सुनाएं, उनको नकीबुल कोहला का खिताब दिया गया। चूँकि पूरा खिताब ज़बान से अदा करना भी काहिली के ख़िलाफ़ समझा गया, इसलिए सदरुल कोहला को सिर्फ सदरुल कहा गया और नाज़मुल कोहला नाज़मुल कहलाए, और इसी तरह बाकी दूसरे खिताब। भोपाल के बाद मशहूर और मुअज़्ज़ज़ असहाबे वक्त इस अंजुमन के मेंबर थे। अगर कोई शख्स रुकनियत की दरख्वास्त देता तो उसकी काहिली का इम्तिहान लिया जाता। दाखिले की फ़ीस एक तकिया थी। जो शख्स रुकन बन जाता वो घर से एक तकिया लाता और दारुल कोहला में डाल देता।
अभी इसका जिक्र और चलता रहेगा आगे। ये गज़ल में से 2-3 अशार, बहुत खूबसूरत मतला। ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, ये मिसरा काश नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। सुना है हश्र में हर आंख उसे बेपर्दा देखेगी, सुना है हश्र में हर आंख उसे बेपर्दा देखेगी, मुझे डर है न तौहीने जमाले यार हो जाए। यही है जिंदगी तो जिंदगी से खुदकुशी अच्छी, कि इंसान आलमे इंसानियत पे बार हो जाए। एक ऐसी शान पैदा कर के बातिल थरथरा उठे, नज़र तलवार बन जाए नफस झनकार हो जाए। ये रोज़ो शब ये सुबह शाम ये बस्ती ये वीराना, सभी बेदार हैं अगर इंसान बेदार हो जाए। और अब हम जिगर साहब का कलाम सुनेंगे जनाब नसीर हमायूं साहब से। आपके बात तो सही है, हासिल है। एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ ख़वातीन हज़रात की गज़ल से पहले 2-3 अशार कि फिर दिल है कसदे कूचाए जाना किए हुए, रग रग में नैश इश्क को पिन्हा किए हुए, फिर जानिबे करार है आमादा फ़ुग़ां, 100 हशरिक सकूत में पिन्हा किए हुए, फिर कैफे भी खुदी में बढ़ा जा रहा हूँ मैं, सब कुछ निसार शौक़ फरामा किए हुए। दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। जब कोई जिक्र गर्दिश अयाम आ गया, बेख्तियार दिल पे तेरा नाम आ गया। गम में भी सरूर वो हंगाम आ गया, शायद के दौर बादाए गुलफाम आ गया। दीवानगी हो अक्ल हो उम्मीद हो कि यास, दीवानगी हो अक्ल हो उम्मीद हो कि यास, अपना वही है वक्त पे जो काम आ गया। और दिल के मामलात में ना से शिकस्त क्या, दिल के मामलात में ना से शिकस्त क्या, 100 बार हुस्न पर भी ये इल्ज़ाम आ गया। सयाद शाद माँ है मगर ये तो सोच ले, सयाद शाद माँ है मगर ये तो सोच ले, मैं आ गया कि साया तहदाम आ गया। और दिल को ना पूछ मारकाए हुस्न इश्क में, दिल को ना पूछ मारकाए हुस्न इश्क में, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आ गया। ये क्या मकाम इश्क है, जालिम के इन दिनों अक्सर तेरे बगैर भी आराम आ गया। ये क्या मकाम इश्क है, जालिम के इन दिनों अक्सर तेरे बगैर भी आराम आ गया। और मक़सद कर रहा हूँ कि अहबाब मुझसे कते ताल्लुक़ करें जिगर, अब आफ़ताब ज़ीस्त लबे बाम आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नसीर हमायूं साहब। अंजुमन कोहला में एक साहब जिनका कद बहुत लंबा था, वो तवीलुल कोहला कहलाए, और एक साहब जो अपनी बुजुर्गी के बायस हर एक से बड़ी शफकत से मिलते थे, उन्हें उम्मुल कोहला का खिताब दिया गया। जनाब मालिक राम के मजमून के मुताबिक अंजुमन कोहला के अजलास रात 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक रोज़ाना होते थे। ये अजलास 6 महीने तक चले। हर रात 3-3 बजे तक गैर हाज़िरी से इन लोगों के घरों में चे में गोइयाँ होने लगी। जो साहब शादीशुदा थे, उनमें से बाज़ की बीवियों ने ये बावर करने से इनकार कर दिया कि जिगर कोई शायर है जिसके पास जाके ये हजरात बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हो ना हो ये मुई जिगर कोई तवाइफ है जिसके कोठे पर जाकर ये लोग रोज़ाना रंग रलियाँ मनाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि बाज़ असहाब को हज़रत जिगर को अपने साथ घर ले जाके अपनी बीवियों को दिखाना पड़ा ताकि इत्मीनान हो जाए।
अपने मजमून के आखिर में मालिक राम लिखते हैं कि अगर आज भी इस तरह की कोई अंजुमन बनाई जाए जिसका तुर्रा इम्तियाज़ काहिली करार पाए तो उसे जिगर साहब से ज़्यादा फाल सदर मुयसर नहीं हो सकता। आप जिगर साहब का कलाम सुनाएंगी मोहतरमा सरवत इकबाल साहब। गज़ाली साहब की तरह मुझे भी दोहरी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि पहले दौर में इतनी तमहीद के बावजूद मैं फिर आपसे इजाज़त लेना भूल गई। तो दोहरी इजाज़त के साथ, मोहब्बत में ये क्या मकाम आ रहे हैं, मोहब्बत में ये क्या मकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। वो अस खुद ही नादिम हुए जा रहे हैं, खुदा जाने क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। हमारे ही दिल से मज़े उनके पूछो, हमारे ही दिल से मज़े उनके पूछो, वो धोखे जो दानिस्ता हम खा रहे हैं। जफा करने वालों को क्या हो गया है, जफा करने वालों को क्या हो गया है, वफा करके भी हम तो शर्मा रहे हैं। वो आलम है अब यारो अग़यार कैसे, वो आलम है अब यारो अग़यार कैसे, हम ही अपने दुश्मन हुए जा रहे हैं। मिजाजे गरामी की हो खैर यारब, मिजाजे गरामी की हो खैर यारब, कई दिन से अक्सर वो याद आ रहे हैं। मोहब्बत में ये क्या मकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरवत इकबाल साहब। मौत कई बार हज़रत जिगर के बहुत करीब से गुजरी लेकिन खुदा ने महफूज रखा। एक दफ़ा एक दोस्त ने तजारती रकाबत के सिलसिले में जहर दे दिया मगर महफूज रहे। मुरादाबाद के करीब एक गांव है तारपुर, मुरादाबाद के लोगों को पता होगा, जहाँ की खीर बहुत मशहूर है। जिगर वहाँ खीर खाने गए और कुछ दिन वहीं रह गए। अजीज़ों और दोस्तों ने बहुत तलाश किया, कुछ पता न चला। ना जाने क्यों लोगों को यकीन हो गया कि जिगर अब दुनिया में नहीं रहे। वापस आए तो मालूम हुआ कि गायबाना नमाज जनाजा हो चुकी है। और अखबार ने उनकी मौत की खबर भी शाया कर दी है। इस खबर की तरदीद करने के लिए हज़रत जिगर को खुद रेडियो स्टेशन जाना पड़ा। 1958 में जिगर साहब पर दिल का दौरा पड़ा और लोगों ने उनकी मौत की खबर उड़ा दी। हज़रत एहसान दानिश की सदारत में ताज़ियती जलसा हुआ लेकिन खबर फिर गलत साबित हुई। हज़रत जिगर का कलाम सुनाएंगे जनाब नगेश अवधानी। आपकी इजाज़त, ताहिर साहब इजाज़त के साथ चंद अशार पेश करता हूँ जिगर साहब की गज़ल के। और इस गज़ल की धुन भी ताशी भाई ने बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी भाई। ताशी भाई आ चुके हैं। हाँ, पराए हाथों जीने की हवस क्या, पराए हाथों जीने की हवस क्या, नशे मन ही नहीं तो फिर कफस क्या, नशे मन ही नहीं तो फिर कफस क्या, पराए हाथों जीने की हवस क्या, मकानों ला मकान से भी गुजर जा, मकानों ला मकान से भी
گزر جا فضائے شوق میں پرواز خس کیا، فضائے شوق میں پرواز خس کیا، پرائے ہاتھوں جینے کی ہوس کیا، محبت سرفروشی جان سے پیاری، محبت سرفروشی جان سے پیاری، محبت میں خیال پیش و پس کیا، محبت میں خیال پیش و پس کیا، پرائے ہاتھوں جینے کی ہوس کیا، نشے من ہی نہیں تو پھر قفس کیا، اجل خود زندگی سے کانپتی ہے، اجل خود زندگی سے کانپتی ہے، اجل کی زندگی پر دسترس کیا، اجل کی زندگی پر دسترس کیا، زمانے پر قیامت بن کے چھا جا، زمانے پر قیامت بن کے چھا جا، بنا بیٹھا ہے طوفان در نفس کیا، بنا بیٹھا ہے طوفان در نفس کیا، پرائے ہاتھوں جینے کی ہوس کیا۔ آخری شعر ہے، لہو آتا نہیں کھچ کر مژاں تک، لہو آتا نہیں کھچ کر مژاں تک، نہ آئے گی بہار اب کے برس کیا، نہ آئے گی بہار اب کے برس کیا، پرائے ہاتھوں جینے کی ہوس کیا، نشے من ہی نہیں تو۔ جی شکریہ۔ اجل خود زندگی سے کانپتی ہے، اجل خود زندگی سے کانپتی ہے، اجل کی زندگی پر دسترس کیا، اجل کی زندگی پر
दस्तरस क्या, पराए हाथों जीने की हवस क्या, नशे मन ही नहीं तो फिर कफस क्या। बहुत बहुत